Good morning, everybody in Canada, USA, Latin America, and all the adjoining places world over. We extend a very hearty welcome to all of you this morning, those who have joined us while having their morning walk, morning jogging, morning cup of coffee or cup of tea, wherever you are. We extend you a very hearty welcome this morning to this particular webinar. At the same time, we also extend a very warm welcome to all our brothers and sisters, those are in Europe and adjoining places. We hope you had a wonderful lunch and thereafter you are with us for this particular webinar. Just wait for a while. We are going to have our evening tea in a short while, all of us together. So, ladies and gentlemen, this evening, we also extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters, those are in ASEAN countries, Myanmar, Cambodia, Laos, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia, and Brunei. Thanks for joining all of you. Puneet, don't play with the slides. Let me do, Puneet. Let me do. You kindly wait. You kindly, okay. So, ladies and gentlemen, we extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters. Those are in Middle East, Central Asia, and other countries wherever you are world over. Now, at this point of time, the whole world is passing through one of the most difficult times. We have got COVID-19, we have got lockdown, बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स के पास हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस क्लोज हैं और उसी के साथ साथ फिजिकल के साथ साथ मेंटल वेलनेस की भी जरूरत है। और आज का जो हमारा विषय है, because this entire series which we have started on 5th of June, when we were celebrating and we were talking about World Environment Day, United Nations agenda, and we were talking about Jal Sanrakshan, water conservation. On that day, we started a new journey and we started a new program and we started working on how to basically make education relevant. जो शिक्षा है उसको प्रासंगिक कैसे बनाएं? डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। I'm not. I'm not mute. People can hear me, Professor Sir. People can hear me. People can hear me. I'm not mute. I'm not mute. So, ladies and gentlemen, we were talking about making education relevant. शिक्षा को प्रासंगिक कैसे बनाएं और शिक्षा के साथ साथ जो स्किल्स हैं इन सब चीजों की बातचीत करते हैं। तो पूरे प्रोसेस के अंदर जब हम लेके चलते हैं तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो है बेसिकली नालंदा के बारे में, जो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी व्हेन आई टॉक अबाउट, उस यूनिवर्सिटी की जब हम बातचीत करते हैं, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या था जहां पर 10,000 छात्र थे, 2,000 आचार्य थे और शिक्षा का इतना अच्छा प्रबंध था कि जहां पर निःशुल्क शिक्षा थी और जहां पर सिर्फ भारत के ही बच्चे नहीं, from the world over students were coming and the entry to this particular university was so difficult, it was so tough that even जो वहां के दरबान हैं वो लोग भी इतने शिक्षित थे और उन लोगों का भी इतना बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम का, इकोसिस्टम का एक उनका भी एक सहयोग और उनका योगदान था। इसको थोड़ा आगे लेके जब हम चलेंगे तो बातचीत करेंगे। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ बहुत ही
माननीय शख्सियतें जुड़ी हैं भारत से, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में एजुकेशन को आगे लेके चलना चाहते हैं, एजुकेशन को एम्पावर करना चाहते हैं और शिक्षा को हर जगह ठीक ढंग से पहुंचाना चाहते हैं ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके। और जो भी टीचर इस एजुकेशन सिस्टम में जुड़ा हुआ है वर्ल्ड ओवर, हाउ दे कैन आल्सो बी एम्पावर्ड फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। Ladies and gentlemen, we are privileged this evening. I will be using a bilingual because a lot of people have joined us from the world over, from the different countries. When you have joined us, हम आप लोगों के साथ जब बातचीत करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करेंगे। I know David from Lebanon, but you have been coming to India quite often. You will understand a little bit of it. We have been joined this evening by Shri Pramod Kumar ji, the Prant Parcharak for Punjab, Shri Vijay Kumar Nadda ji, Vidya Bharati Punjab and North Region, Dr. Rajneesh Arora ji, Chairman Induction Program with the AICTE, Professor Dr. Kuldeep Chand Agnihotri ji, Honorable Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, Dr. Varinder Garg ji, he is a Principal Investigator with the PGI, with the CIBIOD, Center for Innovation and Biodesign, while extending a very hearty welcome to all these dignitaries, जहां पर हमारी deliberations और आज की जो चर्चा है वो है नालंदा युग का पुनः स्थापन। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु पुनः बनेगा, और ये सारी एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर करते हुए हम इस सारे सिस्टम को आगे कैसे लेके चलेंगे। But before we start today's deliberations, today's program, and we start hearing the views from the experts of this evening, we wish to have a little journey with few slides to share with you what all we have been doing from 5th of June, क्योंकि हर रोज बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ एक कॉमन फ्रीक्वेंसी पर हो, तो उसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा, so that we all know what have we done so far from 5th of June, that's World Environment Day. Now, ladies and gentlemen, during the COVID-19, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के मैक्सिमम बच्चे इस समय अपने घरों में हैं। A large population, 850 million children and youth, roughly half of the world, when we talk about student population, they are presently away from schools, colleges and universities. वो पेरेंट्स के साथ हैं, we can understand, पेरेंट्स के लिए बहुत टफ टाइम है, लेकिन इस पर्टिकुलर महामारी से अपने आप को बचा के लेके चले जाना, क्योंकि जीवन जो है, अगर जीवन है तो सब कुछ है और सब चीजें एम्पावर हो जाएंगी। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी को एजुकेशन, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट पे है, तो यहाँ पर भारत का जब रेलेवेंस आता है तो वेस्टर्न फिलॉसफी में पर्पस ऑफ एजुकेशन की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि एजुकेशन हैज गॉट 4 पर्पसेस। इसका इकोनॉमिक पर्पस है, इसका सोशल पर्पस है, इसका कल्चरल पर्पस है और इसका पर्सनल पर्पस है। इन 4 चीजों पर ये जो ऑर्डर है ये बड़े ध्यान से हम सबको समझना है और जानना है। इकोनॉमिक इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन कम्स सोशल, देन कम्स कल्चर एंड लास्ट कम्स पर्सनल। अब आइए आपको लेके चलता हूं भारत में वसुधैव कुटुंबकम। जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से शिक्षा की बातचीत करते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी रोजमर्रा के जीवन की दिनचर्या, हम कौन हैं और जहां पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ कैसे करें। सो कल्चर गेट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, इकोसिस्टम। उसके बाद हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जो कुछ भी हम सोशल वैल्यूज को लेके चलते हैं। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी आजकल बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज पर, मॉरल एथिक्स पर, मैं उनके कार्यक्रम देखता रहता हूं। उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। आप देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में इकोनॉमिक्स नंबर 1 पर था, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। 4th पर्पस, यस, एवरी यूथ हैज गॉट ए राइट। हर युवा पीढ़ी के युवक को, युवती को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका जीवन में एप्लीकेशन क्या है। That part is very important, which we have to talk about. During the lockdown,
हम सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ग्लिचेस भी आती हैं, टेक्नोलॉजी की डिफिकल्टीज भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन एजुकेटर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टीवी चैनल के माध्यम से, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, मोबाइल फोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके माध्यम से किस तरीके से हम जन जन तक, बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अर्बन में है, रूरल में है, सेमी अर्बन में है, फार फ्लंग में है, इंटीरियर में है, कहीं पर भी है, उन बच्चों तक शिक्षा की वो सारी चीजें कैसे पहुंच पाए, कंटेंट कैसे हो। सबसे बड़ा जो प्रश्न है इस लॉकडाउन में और इस डिजिटल टाइम में, जब हम क्लासरूम से ग्राउंड पर आ गए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है, एजुकेशन शुड बी रिलेवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका जीवन में, रोज के जीने में कितना इस्तेमाल है, वो कितना प्रैक्टिकल है। जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, जितनी भी डिग्रीज हम ले रहे हैं, क्या वो हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल हो रही हैं, क्या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हम रोज लेके चलते हैं, रोजमर्रा के डिस्कशंस में लेके चलते हैं। एक डॉक्टर सुगाता मित्रा हैं, इनके साथ क्योंकि मैं 2 महीने विदेश में पढ़ाता हूं, जब मैं बाहर जाता हूं तो इनके साथ मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का हुआ, और ये कहते हैं कि क्या बच्चे, डू किड्स रिक्वायर सुपरविजन ऑल द टाइम्स। इनकी बहुत बढ़िया रिसर्च है, यूट्यूब पर देखिएगा, कैन किड्स टीच देमसेल्फ। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने गांव के अंदर, एक दीवार के अंदर चुपचाप 2 कंप्यूटर फिट कर दिए, कोई टीचर नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और एक कैमरा फिट कर दिया। उस कैमरे के माध्यम से लोग उसको देख रहे थे और जान रहे थे कि ये क्या है। 1 महीने के बाद इसका पूरे का पूरा विस्तार से एक एनालिसिस किया गया। इसको यूट्यूब पे देखिएगा, डॉक्टर सुगाता मित्रा जी का, तो यू विल बी एबल टू। आगे चलते हैं। भारत को विश्व गुरु बनना है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें भारत का सम्मान करना होगा, शिक्षकों का सम्मान करना होगा, शिक्षा का सम्मान करना होगा, दोबारा से पुनः स्थापित करना होगा। ये सारी चीज को जब हम लेके चलते हैं, ये स्लाइड पूरी क्रक्स है हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की, जो अब लेकर चल रहे हैं। इस पहली त्रिकोण में आप देखिए, एजुकेटर और पेरेंट्स ऊपर हैं और यूथ नीचे है। और जब आप त्रिकोण को उल्टा करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा टिक नहीं पाता, क्योंकि इसका मैसेज है, व्हाट्स लॉस्ट व्हेन वी रश किड्स थ्रू चाइल्डहुड। बच्चे के जीवन में हम क्या क्या भर देते हैं कि बच्चा जान ही नहीं पाता, और उसके मॉडल को कैसे लेके चलना है। पेरेंट्स एंड एजुकेटर, यूथ को समझना है, क्या हम जान रहे हैं कि यूथ क्या चाहता है। इस सारी चीज की बातचीत है। मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM हम शिक्षा की बातचीत करते हैं, शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं, युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करते हैं, यूथ को एम्पावरमेंट की बातचीत करते हैं, मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट की बातचीत करते हैं, और वर्ल्ड ओवर से ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेटर्स एंड मोटिवेटर्स सब इकट्ठे होते हैं, और वो अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी इनोवेशंस और अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करते हैं कि शिक्षा में क्या बदलाव आना चाहिए, शिक्षा रेलिवेंट कैसे होनी चाहिए। लेकिन हर शनिवार को मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 बजे तक हम शिक्षा की बातचीत करते हैं। लेकिन हर सैटरडे को जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम वेलनेस की बातचीत करते हैं, आयुर्वेदा की बातचीत करते हैं, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों की बातचीत करते हैं। और हर संडे मॉर्निंग को हम एक इंटरनेशनल स्पीकर के साथ आते हैं। आज भी इस समय लॉस एंजलिस से, बर्बैंक से, कैलिफोर्निया से हमारे साथ प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जुड़े हुए हैं, जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेसर अवार्ड के रेसिपिएंट हैं, जिनको यूएसए के अंदर, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यहीं से पढ़ा के रोटरी क्लब के माध्यम से गए, और वहां की शिक्षा प्रणाली ने उन्हें कहा कि आप यहीं रुक जाइए, हमारे पास रुकिए। इनकी डबल पीएचडी है, पहली एजुकेशन में और सेकंड बुद्धिज्म में। ये हमारे साथ हर संडे आते हैं और मॉर्निंग में, और श्रीमद् भागवत गीता, वो आज के टुडे के एजुकेशन सिस्टम में कैसे, हाउ टू लिव ए फुलफिल्ड लाइफ, ये भी हमारी एक पूरी प्रतिक्रिया और ये पूरा प्रयास है कि एजुकेशन में अपनी रेलिवेंट स्टोरी, अपने एपिक्स, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को कैसे लेके आए। आइए शिक्षा को प्रासंगिक बनाएं। ये हर संडे को सुबह 9:30 से 11 बजे तक। तो आप देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम पैक्ड है। 5 जून को हमने कैसे शुरू किया? 5 जून को हमने ये कैंपेन शुरू करी,
और इसको हम 15 अगस्त तक लेके चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त तक तकरीबन 10 लाख लोग हमारे साथ पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाएंगे इस पूरी कैंपेन में। हर रोज हमने शुरू किया 500 से 17,000 तक हम आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नित्य प्रति हर दिन हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनको हम लेके चल रहे हैं। और जल संरक्षण का हमारा प्रयास, क्योंकि इस समय बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, तो आइए पेरेंट्स अपने घर से अपने बच्चों के साथ इस समय जल बचाने की सब चीजों के बारे में सोचें। उसके बाद सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे तो तब उसकी बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी संस्थान है जहां पर रोजगार का काम है, हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, उन सब का। और हमने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को भी पत्र लिखा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिखा कि जिस तरीके से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, फैशन डिजाइनिंग, ये सब वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, उसी तरीके से वाटर कंजर्वेशन का भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां बच्चों को समझ आएगा। पिछले 2.5 महीने में 20 मार्च के बाद हमारे चेंबर के जितने भी एडवाइजर हैं वर्ल्ड ओवर, उन सब ने अपनी रिसर्च करी, वर्कआउट करी, और ये रिसर्च का एक निचोड़ निकाल कर हम ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक आवश्यकता है फूड की, एग्रीकल्चर की, और जिसके अंदर हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अपने किचन गार्डन में फ्लावर्स मत उगाइए, अब वो सब्जियां उगाइए जिससे जीवन निर्वाह होता है। उन पेड़ों को लगाइए जिन सब्जियों से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए जिससे आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बैलेंस में रहने चाहिए, आपकी हेल्थ और वेलनेस। तो सेकेंड पार्ट इस ट्राइंगल का है हेल्थ एंड वेलनेस, आप फिजिकली और मेंटली फिट रहने चाहिए। और तीसरा ये है, जब हम एजुकेशन को डिजिटल एजुकेशन में लेके आ गए, तो एजुकेशन कभी भी पुरानी चीज में जो कुछ जनवरी फरवरी में होता था उस पर नहीं जाएगी, हमको आगे देखना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। और B2B जो पहले बिजनेस में हम बिजनेस टू बिजनेस कहते थे, उस पर बैक टू बेसिक आ जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पूरा वर्ल्ड टिकेगा, उसी को हम लेके चलते हैं। जब हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की गरारियां चल रही होती हैं, तो एक चीज समझनी है, whatsoever human mind can conceive and believe can achieve। शरीर में और मस्तिष्क में जब हम एक बार सोच लेते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, तो व्यवस्थाएं बनती जाती हैं, उन सब चीजों के लिए रास्ते खुलते जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। Let's come together for the global empowerment and let's work together. Our chamber, International Chamber for Service Industry, invites everybody, all brothers and sisters from world over, those are with us. We have got email, we have got web, we have given everything. Now, ladies and gentlemen, I am getting back to इतिहास के पन्नों को पीछे लेके चलते हैं। आज की शाम हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं, आज की शाम का विषय क्या है, वो स्लाइड्स बेसिकली मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की। द पीपल दोज हैव जॉइंड अस टुडे, दे शुड नो व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस, what do we want to achieve, and how do we need your samagri in this Havan Kund, so that there is a confluence of knowledge and wisdom together by all of us. आज की शाम इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं and let's explore the learning center of the ancient India, Nalanda University. इतिहास के पन्नों में जब हम पीछे जाएं, तो ladies and gentlemen world over, the university that came, Nalanda University की जब मैं बातचीत कर रहा हूं, the first residential university of the world, this university came long before the University of Oxford, University of Cambridge, University of Harvard, and many other universities when we talk about world over. This is what, ladies and gentlemen, hearty welcome to Nalanda. The present government, they are restoring, they have restored, they are empowering, they are trying to bring everything whatsoever is possible from that ancient time with regard to Nalanda University. Ladies and gentlemen, with these words, I extend a very hearty welcome to all the dignitaries from the world over to be a part of this particular program, to be a part of this particular process. And may I humbly request, we will start this evening
I will unmute the mic of our Honorable Professor Dr. Kuldeep Chand Agnihotri ji, the Honorable Vice Chancellor, Central University, हिमाचल प्रदेश। 8 से 10 मिनट आप अपने विचार हमारे साथ रखिए और हमें समय में वापस लेके चलिए नालंदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जी आवाज आ रही मेरी? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छी आ रही है सर। बस ठीक, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं इस प्रयास को बहुत ही एक प्रकार से बधाई देता हूं कि एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर और दुनिया भर के लोगों से संपर्क करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की है। गुलशन जी ने अपने पूरे वक्तव्य में एक बहुत सुंदर बात कही है, मैं वहीं से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे जो पुराने विश्वविद्यालय थे, नालंदा उन्हीं में से आता है। पुराने विश्वविद्यालय में नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, और नालंदा के पास ही उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में है, वहां शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इस प्रकार से बहुत गुरुकुल थे हिंदुस्तान में। और गुलशन जी ने कहा कि गुरुकुल में एडमिशन के लिए दरबान ही जो होता था बड़ा विद्वान होता था। तो इन विश्वविद्यालयों का पर्पस क्या था? विश्वविद्यालयों के पर्पस से शिक्षा का पर्पस जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात तो शिक्षा की हो रही कि शिक्षा आज के युग में हमारी जो शिक्षा वो रेलेवेंट कैसे हो। बहुत से दरअसल जब हम बहस करते हैं, जब हम संवाद आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत से शब्द अंग्रेजी के आते हैं, उनका हम हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। जैसे हमने एजुकेशन का अनुवाद शिक्षा कर लिया है। और भारतीय संस्कृति में जब भारतीय भाषाओं में ज्ञान शब्द आता है, ज्ञान भारतीय संस्कृति भारतीय वाङ्मय का मूल शब्द है। और अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है, शायद नॉलेज कहा जा सकता है। लेकिन नॉलेज का अर्थ क्या ज्ञान है? नॉलेज क्या ज्ञान को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है? इसी तरह विद्या शब्द है। विद्या का अंग्रेजी में कौन सा शब्द इसके सिनोनिमस होगा, शायद पता न चले। ये मैंने इसलिए 2-3 उदाहरण दिए कि जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं, तो हमें जो टर्मिनोलॉजी है, हमें जो शब्द है, वो भी भारतीय परंपरा के शब्दों की तलाश करके उनके कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद हम कहीं ना कहीं। चलिए, मैं बात वही गुरुकुल से, जो गुलशन जी ने कहा था कि साहब दरबान भी बड़े विद्वान होते थे। तो शिक्षा का, नॉलेज का, ज्ञान का, विद्या का, गुरुकुल का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, नालंदा का उद्देश्य क्या था? एक बहुत छोटा सा उदाहरण आता है। किसी गुरुकुल में एक स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए गया, तो जैसा गुलशन जी ने कहा, दरबान तो दरवाजे पर ही खड़ा होगा। तो उसने पूछा दरबान ने कि कौन हो तुम? तो स्टूडेंट ने, जो एडमिशन लेने के लिए आया था, उसने क्या उत्तर दिया? कहता, भाई यदि मुझे ये पता होता मैं कौन हूं, तो मैं इस विश्वविद्यालय में क्या करने आता। यही तलाश करने तो मैं विश्वविद्यालय में आया हूं कि मैं कौन हूं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में ज्ञान का, शिक्षा का, विद्या का कंसेप्ट क्या था, अवधारणा क्या थी। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं कि आज के जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के कंसेप्ट को, उनके उद्देश्य को नालंदा विश्वविद्यालय के या भारतीय विश्वविद्यालय के, भारतीय गुरुकुलों के कंटिन्यूटी में नहीं मानना चाहिए। अभी गुलशन जी ने शायद एक और बात कही थी कि शिक्षा में स्किल्स जो आना चाहिए। देखिए, भारतीय परंपरा में स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए परिवार ही होता था। शायद ही कोई परिवार ऐसा होता था जिसके बच्चों को अपने परिवार से निरंतर उस स्किल की ट्रेनिंग नहीं मिल जाती थी, और जब तक वो बालिग होता था तो उस स्किल में वो ट्रेंड हो जाता था। इसलिए विश्वविद्यालयों का जो काम था, नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा के विश्वविद्यालयों का जो काम था, वो स्किल डेवलपमेंट करना उस प्रकार का नहीं था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का काम, जो भारतीय समाज में, परिवार में शताब्दियों से स्थापित था, उसको वहां से छीन कर उसको स्टेट के हवाले किया, और स्टेट ने आगे यूनिवर्सिटी के हवाले किया। तो जो कचरा होना था वो हो ही रहा है। एक बात मैं, क्योंकि समय भी कम है और मुझे बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहनी है, हमारी सभी की चिंता यह है कि हम नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा से कैसे जुड़े, और उससे जुड़कर आज देश को विश्व गुरु के पद पर, जो उस रास्ते पर लेकर कैसे चले।
चलिए विश्व गुरु बनने की बात तो दूर तक, उस रास्ते पर कैसे चल पड़े। प्रिय मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, या और भी हिंदुस्तान के पुराने विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों में जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी, उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे। बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों कहिए, आक्रमणकारियों कहिए, उन्होंने उसको जला दिया, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट बचे हुए हैं देश भर में। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, लिटरेचर के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, हर विषय के हैं। लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ पाली में भी लिखे गए हैं। तथागत बुद्ध के उपदेशों का प्रचार होने के बाद पाली में भी लिखे गए, कुछ प्राकृत में लिखे गए, लेकिन अधिकांश संस्कृत में लिखे गए हैं। अब ये लाखों की संख्या में जो पांडुलिपियां पड़ी हैं, आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का इस पांडुलिपियों से कुछ लेना देना नहीं। अब तो दीमकी चाट रही है एक प्रकार से। आज जो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वो लगभग 1875 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना होने पर जो लंदन का मॉडल था, जो वहां के सिलेबस थे, वो ट्रांसप्लांट कर दिए गए। और जो भारतीय परंपरा के विषय थे, वो नालंदा में, विक्रमशिला में या तो जला दिए गए, जैसे मैंने कहा, अभी भी घर घर में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट पड़े। लेकिन अब समस्या क्या है, जिसको फिजिक्स आती है उसको संस्कृत नहीं आती, जिसको संस्कृत आती है उसको फिजिक्स नहीं आती। इसलिए यदि हम विक्रमशिला की, नालंदा की उस ज्ञान विज्ञान परंपरा से जुड़ने का प्रयास करें, तो बीच का जो सेतु था, वो सेतु टूट चुका है, पुल टूट चुका है। वो लोग कहते हैं साहब मैंने उसका कुछ का ट्रांसलेशन हो गया है। सभी का ट्रांसलेशन तो पॉसिबल ही नहीं, ना हो सकता है, ना हुआ है, ना सरकार इंटरेस्टेड है। जिनका ट्रांसलेशन हुआ है, एक बात ध्यान में रखिए प्रिय मित्रों, जो ट्रांसलेशन करता है, यदि तो ईमानदारी से करता है तो 90% लगभग आइडिया को ट्रांसलेट कर पाता है। यदि बेईमानी से करता है तो 50% को ट्रांसलेट करता है, और 50% जो आइडिया होता है अपना उसमें ट्रांसलेशन के माध्यम से देता है। ये ट्रांसलेशन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने किए हुए हैं, इसलिए इन ट्रांसलेशनों की ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जैसे वेदों का भाष्य जो है, वो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भी किया है और स्वामी दयानंद ने भी किया है। स्वामी दयानंद का जो भाष्य है वेदों पर, वो ज्यादा प्रामाणिक है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, वो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा किया जो भाष्य है, वो ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बात कहना चाहूंगा, यदि हम नालंदा की परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो पिछले लगभग 1000 साल से ये पुल टूट गया है, इस पुल के, इस ब्रिज को दोबारा बनाने का कोई प्रयास हो सकता है। यदि दोबारा बनाने का प्रयास हो जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि हम बैक मारकर वहीं चले जाएं जहां नालंदा में छोड़कर आए थे। देखिए, समय तो कभी रुकता नहीं, समय तो महाकाल का रास्ता चलता रहता है। लेकिन ये बीच का पुल जो टूटा, यदि ये जुड़ जाएगा, तो वहां ज्ञान की जो धारा है वो प्रवाहित होकर हमारे पास आएगी। उसमें जितनी रेलेवेंट होगी वो हम रख लेंगे, जितनी रेलेवेंट नहीं होगी वो नहीं रखेंगे। और आश्चर्य की बात है, जो अभी जिसको कहा जा सकता है, बहुत सी ज्ञान विज्ञान में वहां जो सामग्री पड़ी है, वो आज के ज्ञान विज्ञान की जो खोजें हैं, उनको एक प्रकार से उसकी पुष्टि करती है। लेकिन क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं है, इसलिए हम आत्महीनता से ग्रस्त हैं कि जितना ज्ञान विज्ञान में तरक्की हुई है, वो विदेशों में हुई है। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को यदि जीवित करना है, तो एक तो हमें भारतीय शब्दों को पुनर्स्थापित करना होगा। खास करके ऐसे शब्दों को, कुछ शब्द होते हैं जिनके ट्रांसलेशन में कोई खतरा नहीं होता। गधे का ट्रांसलेशन डोंकी है, इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गधा सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्ञान का ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, इसमें खतरा है। विद्या का ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, इसमें खतरा है। जो शब्द कंसेप्चुअल होते हैं, उनका ट्रांसलेशन करने की बजाय यदि हम उसको मूल से पकड़कर उसकी विकास में आगे संभावना तलाशेंगे, तो मैं समझता हूं जिस नालंदा ट्रेडिशन से हम टूट चुके हैं, उससे हम दोबारा जुड़ सकते हैं। एक बार मुझे लगता है समय तो मेरा 10 मिनट हो ही गया होगा, जैसे गुलशन जी ने कहा कि 10 मिनट में एक आध मिनट और बात करके। देखिए, जो नालंदा में शिक्षा का ट्रेडिशन था, वो ट्रेडिशन समाज उसका वहन करता था, राज्य उसका वहन नहीं करता था।
शिक्षा के लिए ना तो विद्यार्थी को पैसा देना पड़ता था और ना राज्य से लिया जाता था। राज्य भी यदि देता था तो विनय पूर्वक देता था और गुरुकुल उसको स्वीकार करता था, अस्वीकार भी कर सकता था। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का सारा भार समाज उठाता था। लेकिन प्रिय मित्रों, पिछले 1000 साल की गुलामी से समाज की ताकत को धीरे 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 चूस कर समाज को निर्जीव बना दिया गया है और राज्य को सबसे ज्यादा सशक्त बना दिया गया है। ये विक्रमशिला और नालंदा परंपरा जो थी, सामाजिक परंपरा थी, और आज की जो शिक्षा परंपरा है, ये स्टेट की परंपरा है। तो एक तो समाज और राज्य के इस जो इसको कहना चाहिए, इस संबंधों को, इसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सके समाज की परंपरा को, ये 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जब तक गहराई से हम इन पर विचार नहीं करेंगे, तब तक शायद हम कहीं निष्कर्ष पर ना पहुंच पाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इस विषय को उठाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है यदि इस शिद्दत से, इस एक प्रकार से कहना चाहिए कमिटमेंट से कुछ लोग जुड़ेंगे, तो जरूर हम विक्रमशिला की और नालंदा की, तक्षशिला की परंपरा को जीवित कर सकते हैं। भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय शब्दों का पुनः स्थापन करना होगा, बहुत खूब। मैंने वो की लाइन आपसे ले ली। एंड यू वुड बी सो हैप्पी टू नो सर दैट मिस्टर विकास मल्होत्रा फ्रॉम कनाडा, मिस्टर मोनित पाल फ्रॉम टोरंटो, म्यांमार में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडो म्यांमार चेंबर ऑफ कॉमर्स नरेश जी, मिस्टर मजुमदार इंडो कंबोडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेसर पंत्रिप नरूला फ्रॉम थाईलैंड, दातो रमेश कोडामलजी फ्रॉम मलेशिया, दे ऑल सेंड देयर ग्रीटिंग्स टू यू। कुछ ही शब्दों में आपने हर चीज का निचोड़ करके पूरी चीज से दे दिया। और जो आपने एक शब्द यूज किया सर, एक सेंटेंस, कि स्किल की जो ट्रेनिंग है वो परिवार से ही आती थी। बहुत मतलब there was no need to have a separately some skills to be imparted. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों का। कुछ प्रश्न होंगे तो मैं इस प्रोग्राम के अंत में, आखिर में आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम आपके। अब मैं निवेदन करूंगा श्री विजय कुमार नड्डा जी से, विद्या भारती से, जो पंजाब के और पूरे नॉर्थ इंडिया के हैं। इन्होंने आज दोपहर को मुझसे बातचीत करके मेरा तकरीबन 250 ग्राम खून बढ़ाया और बहुत सारी चीजों पे मुझे इतना हंसाया। हंसना लाइफ में बहुत जरूरी है। म्यूजिक थेरेपी भी एक एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। जो लोग साइंस के टीचर हैं वो लोग इस चीज को समझेंगे। सो आमंत्रित है हमारे श्री विजय कुमार नड्डा जी। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगे सभी डॉक्टर साहब के सहयोगी एवं इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में उपस्थित हमारे अन्य पैनलिस्ट डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, श्री प्रमोद जी और डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी और डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, जिनके इनिशिएटिव से और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं भारत ही नहीं तो विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले लगभग 70 वर्षों से भारत के अंदर काम कर रही ऐसी विद्या भारती संस्था की ओर से जो 25,000 शिक्षण संस्थाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। और उसमें भी बड़ी विशेषता है जो डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी ने जिसका संकेत किया कि जो भारतीय मॉडल शिक्षा का है, समाज के सहयोग से शिक्षा, विद्या भारती उस मॉडल पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। तो मैं विद्या भारती की ओर से आयोजकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक इस विषय की बात है, रिवाइवल ऑफ नालंदा टाइम्स, तो मैं समझता हूं कि
अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है। जहां तक नालंदा विश्वविद्यालय का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस देश में, भारत में, शिक्षा प्रारंभ से ही व्यक्ति के अंदर का जो डिविनिटी है, स्वामी विवेकानंद जिसको कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य जो व्यक्ति के अंदर की दिव्यता है, डिविनिटी, उसको प्रकट करना, ये शिक्षा का उद्देश्य रहा है। और नालंदा विश्वविद्यालय उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। लगभग 800 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में रहा और इस विश्वविद्यालय ने भारत ही नहीं तो दुनिया को अनेक जिसको कह सकते हैं कि महापुरुष इस विद्यालय ने प्रदान किए। आज जहां रिवाइवल की बात चल रही है, तो मैं समझता हूं कि एक दूसरा विषय जो इसमें ध्यान आकर्षित करने का है कि ऐसी मेंटेलिटी जो नॉन टॉलरेंट, अर्थात इतने बड़ी ज्ञान संपदा को जलाने के लिए मिट्टी में मिलाने का जिस मेंटेलिटी ने और सर अगर आप वीडियो ऑफ कर दें तो आपका ऑडियो ठीक हो जाएगा। यदि आप अपना वीडियो सर ऑफ कर लें तो आपका ऑडियो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी बैंडविड्थ कम लेगा सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपकी टेक्निकल टीम आपका वीडियो ऑफ कर दें और आपका ऑडियो ऑन करें तो सुनाई देगा सर। हाँ जी, वीडियो तो मैंने ऑफ कर दिया। आ गया सर, आ गया सर। आप अब बोलिए सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं एक विषय की ओर संकेत कर रहा था कि जिस मेंटेलिटी ने इतनी बड़ी ज्ञान संपदा को मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया, और अभी हमारे एक ऑडियंस में से मिश्रा जी ने अभी चैट में लिखा था कि मैंने वो आशीष देखी है, वो राख देखी है। 3 महीने जो और ज्ञान संपदा जलती रही, तो कितने लाखों ऋषियों की और तपस्या को और एक जिसको कह सकते हैं कि ऐसी फंडामेंटलिस्ट मानसिकता ने और एक प्रकार से मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। तो वो मानसिकता वास्तव में आज अनेक रूपों में आज भी विद्यमान है, जो किसी दूसरे विचार को लेकर बहुत ही नॉन टॉलरेंट है। तो इस मानसिकता को पहचानना और इस मानसिकता को ठीक करना, ये भी नालंदा के रिवाइवल का ही एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि दुनिया ने और ऐसी मानसिकता के कारण बहुत बड़ा नुकसान और उसको उठाना पड़ा। अभी मैं इसमें पढ़ रहा था कि बख्तियार खिलजी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो कितने कट्टर थे। तो एक बार वो बीमार हो गए तो बीमारी इतनी बढ़ती गई तो उनके डॉक्टर्स ने, उनके वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। तो उनके सहयोगियों ने सलाह दी कि नालंदा में विश्वविद्यालय में अनेक ऐसे विद्वान लोग हैं, अनेक वैद्य हैं, और अगर वो आपको देखें, दवाई दें, तो आप ठीक हो सकते हैं। तो घटना ऐसी आती है कि वो पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन जब बीमारी ज्यादा बढ़ती गई तो मजबूरी से वो तैयार हुए, लेकिन तब भी इतनी उनके अंदर और एक प्रकार से संकीर्णता थी कि शर्त के साथ उससे और ट्रीटमेंट लेने को तैयार हुए जो भारतीय वैद्य थे। और वो शर्त थी कि आप मेरे को कोई दवाई नहीं दोगे और आप मेरे को टच नहीं करोगे, और अगर आपके में हिम्मत है, आपके अंदर इतना ज्ञान है,
तो बिना दवाई के, बिना मुझे छुए अगर आप मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तब मैं मान सकता हूँ। हम कल्पना करें कि भाई रोगी को ऐसे ठीक करना तो शायद कितना कठिन होगा, लेकिन जो हमारे वैद्य भी बड़े चमत्कारी के रहते थे, तो उन्होंने शर्त उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और उनसे कुरान मंगवाई। ऐसा उसमें वर्णन आता है कि कुरान मंगवा कर कुछ पेज उनको संकेत किए कि पेज नंबर इतने से इतने तक का रोज पाठ करना है, और उन पेज में उन्होंने कुछ लेप उन पेज में और लेप, किसी दवाई का लेप कर दिया। और सामान्यतः मनुष्य जब कागज बदलता है, पन्ने पलटता है, तो आजकल तो पानी आ गया है, लेकिन अधिकांश जो है वो अंगूठे से, अंगुली से बदलता है और साथ में वो जीभ से लगाता है। तो ऐसा वर्णन आता है कि जितनी दवाई इस प्रकार से उसके अंदर जा सकी, उसी दवाई से और बख्तियार खिलजी ठीक हो गए। लेकिन थैंकलेसनेस हम की सीमा कह सकते हैं कि ठीक होने के बाद भी उनकी भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे ऋषियों की तरफ जो घृणा थी वो कम नहीं हुई, बल्कि ठीक होने के बाद उसको नष्ट करने का निर्णय और उन्होंने लिया। तो कुल मिलाकर आज जब रिवाइवल ऑफ नालंदा टाइम्स की बात है तो बहुत अच्छा प्रयास है। तो हमें अपने देश में और पूर्ण विश्व में जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वदा भला, वेल बीइंग ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, और नॉट ओनली ह्यूमैनिटी, हमारे यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात कही जाती है। तो इस विचार को हमें जनमानस में ले जाने की आवश्यकता है। तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि रिवाइवल का ही एक हिस्सा होना चाहिए या हो सकता है। और विद्या भारती, जहाँ तक स्किल की बात है, तो विद्या भारती जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि भारत में शिक्षा का ऐसा मॉडल देने का प्रयास कर रही है। हम छात्रों में स्किल मैपिंग करके और उनके अंदर जो हेरिडेटरी जो गुण है, उन गुणों का विकास करके और अपने छात्रों को भारत से जोड़ना, भारतीय मिट्टी से जोड़ना, भारतीय संस्कृति से जोड़ना, और उनके अंदर एक आत्मविश्वास और उसके साथ उनके अंदर स्किल, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो जो डॉक्टर साहब ने संकेत किया, गुलशन जी ने, तो उस लक्ष्य की ओर भी हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये विषय है, नीड ऑफ आवर जिसको हम कह सकते हैं, कि भारत का ध्यान अपने अतीत की ओर आकर्षित करना। तो ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा इतिहास तो ऐसे गौरवशाली पन्नों से भरा पड़ा है हमारे लिए प्रेरणा लेने के लिए, और इतनी अनमोल खजाना हमारे पास है। केवल हमें अपने देशवासियों का ध्यान उस विरासत की ओर, ज्ञान संपदा की ओर आकर्षित करना है। आप इस सारे प्रयास में लगे हैं। मैं आयोजकों को एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके विचारों का, और ये जानकर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा कि विद्या भारती ग्रुप 25,000 शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रहा है, और जो आपने कहा कि हमारा इतिहास गौरवशाली पन्नों से भरा हुआ है, हमें सिर्फ उनको आगे लेके चलना है। और मैं आज की शाम आपके साथ जब हमारा चेंबर जुड़ा है, मैं अपने चेंबर के माध्यम से अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उन सब के बिहाफ पे आपको ये अश्योर करता हूं कि हमारे चेंबर की तरफ से कहीं भी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, और बाहर के मुल्कों में जो हमारे एनआरआईज हैं, उनके जो बच्चे इस कंट्री में अभी तक नहीं आए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनको जोड़ने के लिए हम आपके साथ एक प्रयास करना चाहेंगे। और आपके इस हवन कुंड में
हम अपनी भी सामग्री और कुछ आहुतियां देना चाहेंगे। वेलकम वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री प्रमोद कुमार जी से, जो प्रांत के प्रचारक हैं। और जब मैंने सर से पहली बार फोन पे बातचीत की तो इतने हम्बल वे में उन्होंने मुझे हैंडल किया। मैं कभी इनसे पहले मिला नहीं और पहली बार फोन पर बातचीत करके सारा डिस्कस करके, तो आज हमारा सौभाग्य है कि प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं। और आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। और ग्लोबल फ्रेटर्निटी जो जुड़ रही है नालंदा को पुनः स्थापित करने में और नालंदा के गौरव को वापस लाने में, बहुत सारी बातें अभी प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने कही, हमारे विजय कुमार नड्डा जी ने कही। अब हम इच्छुक हैं और उत्सुक हैं और एंक्शियस हैं प्रमोद कुमार जी के विचार जानने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है प्रमोद कुमार जी का। सत्कारयोग डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, श्री विजय नड्डा जी और डॉक्टर गुलशन शर्मा जी और डॉक्टर गर्ग जी। विषय आज का बहुत ही सुंदर, अति सुंदर विषय है। कभी जब हमने संघ ज्वाइन किया था तो उस समय सोचा करते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उस समय कल्पना ही लगा करती थी। लेकिन आज इस कोरोना युग में ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भी कल्पना नहीं है, इसको तो साक्षात्कार अपनी आंखों से देख करके हम जा सकते हैं, ऐसा अब लगने लगा है। तो इस दिशा की ओर ये विचार लोगों के विश्व के मुड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम दो बातें कर लें, दो काम अगर हम करने में सफल हो जाएं, तो नालंदा युग को वापस लाया जा सकता है। मेरे हिसाब से एक तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, ये मनुष्य को बताने में सफल हो जाएं अगर हम, तो इस दिशा की ओर सभी का ध्यान जो है मोड़ा जा सकता है। और दूसरा, शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य भी जो है वो भी अगर हम ठीक ढंग से लोगों को समझा पाए और उस दिशा में अगर लोग चल पड़े, तो मुझे लगता है इन दो बातों से ही हमारी गाड़ी जो बहुत बड़ी आगे चल सकती है। पहले जो जैसे हमको बताया जाता था कि शिक्षा के बारे में थे सा विद्या या विमुक्ता। ये विद्या वह है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी इसमें आता है और शिक्षा का उद्देश्य भी इसमें आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भारत ही नहीं तो सारे विश्व का ये उद्देश्य बन गया है सविद्या या नियुक्त। ये नियुक्तियां करने के लिए विद्या नहीं बनी है, हमारी रोजी रोटी के लिए शिक्षा नहीं बनी है। ये शिक्षा जो है, ये ज्ञान जो है, ये हमारी मुक्ति का साधन बनना चाहिए। जब ये लक्ष्य सभी का बन जाएगा तो मुझे लगता है कि एक ठीक दिशा ज्ञान के प्रति सभी लोगों की बनेगी। मेरा कुछ समय के लिए एस व्यासा यूनिवर्सिटी बंगलौर में जाना हुआ, 15 दिन मैं वहां रह करके आया हूं। योग से जीवन को निरोग बनाना तो एक उनका उद्देश्य है ही, इसके साथ साथ जीवन जीने की कला योग के द्वारा कैसे सीखी जा सकती है, ये भी उनके यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है। तो 15 दिन में जो मैंने वहां सीखा कि अपने जीवन को स्लो डाउन करना है प्राणायाम के माध्यम से। आपका जीवन स्लो डाउन होगा श्वास की क्रिया के हिसाब से, तो आपकी सारी बीमारियां दूर जाने वाली हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है मन की स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ है, मन को स्थिर करने की ओर लेकर जाने वाला। तो इसके साथ दूसरी बात भी जुड़ी हुई है कि अपनी इच्छाएं कम करना, तभी मन स्लो होगा।
तो अगर इस नालंदा के युग में हमने लेकर के जाना है, तो मनुष्य के अंदर जो प्राकृतिक गुण है, उन गुणों को विकसित करने का काम अगर हम करने लगेंगे ज्ञान के माध्यम से, तो फिर मुझे लगता है कि संसार को एक ठीक दिशा मिलेगी। हमें प्रकृति के साथ कैसे मिलकर के रहना है, तो इस विषय की बात भी जो चलेगी। दूसरी बात जो अभी बताई गई है वोकेशनल ट्रेनिंग की, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आज महसूस होती है। तो बीच में ऐसा समय भी आया जब वोकेशनल एजुकेशन को काफी तरजीह दी गई थी। मुझे खुद को ध्यान में है सर, 1978 में सभी स्कूलों में 3 प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी। मैंने खुद ये कारपेंटिंग का काम किया है और ये जो शॉर्ट हैंड वगैरह वो सीखने का काम भी किया है, बिजली का काम किया है, डीजल मैकेनिक। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं मैंने खुद पढ़े हुए हैं 8वीं से लेकर 10वीं तक। तो ये भी विषय जो है इसके साथ साथ उठाने वाला है कि जहां हम शिक्षा का उद्देश्य जो है मुक्ति की ओर लेकर जाने वाला बना सकें, और इसके साथ साथ जीवन में जो प्रैक्टिकली काम आने वाली बातें हैं उसकी ओर हम ध्यान दे सकें, तो नालंदा युग में जाने का एक रास्ता जो है प्रशस्त होने वाला है। इसके साथ साथ जो एक मैं और विषय जो लेने की मेरी इच्छा है यहाँ कि अपने संस्कृति का एक जो उद्देश्य है, जो हमारे संतों ऋषियों मुनियों ने तय किया, न राज्यम न च राजासीत न दंडो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति संपरस्परम। तो ये जो धर्म की परिभाषा है लोगों तक, ये यहीं तक सीमित है। ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये तो ये सारे धर्म ना होकर के रिलीजन्स हैं। धर्म जो है वो धारण करने की बात को कहते हैं। इति धार्यते सधर्म, ऐसा कहा जाता है, जो सभी को धारण कर सकता है वो धर्म है। और यहाँ पर जो धर्म की परिभाषा की गई है, धर्मेणैव प्रजा सर्वा, यानी जो जो दायित्व हमारे हैं उन दायित्वों को पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं उन राइट्स को हम अपने आप ही पूरा करते चले जाएंगे। ऐसी संस्कृति जो है हमारे भारत के संतों ऋषियों मुनियों ने दी है, उसकी रिवाइवल भी साथ साथ अगर हम करते चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम नालंदा युग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखकर अगर इस दिशा में बढ़ा जाए तो विद्या का लक्ष्य, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य और भारतीय संस्कृति का लक्ष्य जो है, तीनों बातें लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम सारे संसार को आगे लेकर चल सकते हैं, सारा संसार सुखी रह सकता है। और ये जो उद्देश्य हमारा है वसुधैव कुटुंबकम का जो शुरुआत में आपने दर्शाया है, उस लक्ष्य को भी हम पूर्ण कर सकेंगे। इतना ही मैंने निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तीनों ही पॉइंट्स they are so befitting, and world over people, I got a pat from Lebanon from Mr. David, who visited Bodh Gaya twice, and he says that I send my salutations. He speaks Hindi and he is at present working to revive Buddhism. At the same time, we have also been joined with Mr. David from Lebanon. We also have got Venerable Dr. Dhammapiya ji. He is a Secretary General of International Buddhist Confederation, and he also sends his gratitudes and regards. He is in the making of setting up a Buddhist university in India, and he is trying to get a global confluence. So he also sends his gratitudes and greetings. जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और भारत की संस्कृति
हमारी संस्कृति का रिवाइवल और वो जर्नी समय में पीछे जाके नालंदा को दोबारा से रिवाइव करना और विश्व गुरु बनाना। आपके विचारों से, आपके संबोधन से बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी से। इनसे जब भी मिलता हूं, इनसे जब भी बातचीत करता हूं, मैं हमेशा ये महसूस करता हूं कि हाउ डज ही कंपोज हिमसेल्फ सो मच, हाउ डज ही फाइट अगेंस्ट सो मच adversaries, how does he learn how to remain calm in most difficult times. There's so much to pick up from him. He's a practical living person on this planet, and at present जो गैप था स्कूल और कॉलेजेस के बीच में, और खासकर उन बच्चों का जो इंजीनियरिंग में आ रहे थे AICT में और 12वीं के बाद वो सीधा आते थे, तो the other day when I was listening to chairman and vice chairman and deputy chairman and everybody of AICT, तो मुझे समझ आया कि moral, ethical, values, education, वो जो 6 हफ्ते का इनका कार्यक्रम है, I myself as a student, I attended some of the lectures and I found they were so rewarding. So ladies and gentlemen, world over, moral values, moral ethics, there's a lot of programs which you have got. Go and see the website of the AICTE, All India Council of Technical Education. You'll be able to get a lot of things over there. With these words, ladies and gentlemen, let me extend a very hearty welcome to Dr. Rajneesh Arora ji, Chairman NCC IP AICT, to share his views with all of us. गुलशन जी 8 बज गए हैं और अपना कार्यक्रम 8 बजे तक है। नहीं तो सर, हम लोग क्योंकि 15 अगस्त तक चलने वाले हैं, इसलिए नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। ठीक है, ये आज के कार्यक्रम का जो पूरा सेहरा है वो तो गर्ग साहब को जाता है, वो सूत्रधार है इस प्रोग्राम के, उन्होंने इसकी भूमिका और इसकी नींव रखी है, तो मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मत कहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो पैनलिस्ट के साथ जो अटेंडीज की लिस्ट में देख रहा था, तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसमें नागपुर से श्री शंकर तत्ववादी जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर तत्ववादी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में अनेक वर्ष प्राध्यापक रहे। वहां से रिटायर होने के बाद इस समय विश्व भर में फैली हुई विज्ञान भारती नाम की जो संस्था है, उसके संस्थापक और संरक्षक के रूप में हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 1979 में मैं उनके साथ 30 दिन नागपुर में रह करके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और मेरा सौभाग्य है कि आज श्री शंकर तत्ववादी जी हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम करते हुए मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नालंदा की जब हम बात करते हैं तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन सब यूनिवर्सिटियों का ध्यान आता है, और इतिहास के पन्नों में हमें दिखाई देता है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, दुनिया के बाकी इलाकों में जो लोग जो पढ़ाई की, तो सारी दुनिया भर से आक्रमणकारी हमारे देश में आए। लेकिन हमारे यहाँ से जो पढ़ करके गए, चाहे वो बौद्ध भिक्षु थे, चाहे वो साधु सन्यासी थे, वो सब किसी ने भी अपने हाथ में तलवार लेकर के नहीं गए। तो नालंदा की जो पढ़ाई है उसका आज सारी दुनिया में जो असर नजर आता है, तो दुनिया भर में, चाहे एशिया के अलग अलग देशों में, चाहे यूरोप के अलग अलग देशों में, कहीं मंदिरों के खंडर दिखाई देते हैं और कहीं वहां पर बौद्ध जो संस्थान है उनके अवशेष अपने को दिखाई देते हैं। तो अपने यहाँ से जो लोग पढ़ाई करके नालंदा जैसे संस्थानों से गए, वो अपना भगवा वस्त्र पहन करके और दुनिया भर को शिक्षित करने के लिए गए। उसका कारण ये रहा कि अपने यहाँ पर जो पढ़ाई होती रही, और उसमें स्किल एजुकेशन के बारे में अग्निहोत्री जी ने बताया ही कि वो तो परिवारों में ही हो जाती थी। जब पढ़ने जाते थे तो मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, इस प्रकार के अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, और फिर ये किस लिए करना है, मुझे पढ़ना क्यों है, तो ध्यान में आया कि पहला सूत्र जो विजय नड्डा जी ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वत्र भला, वेल बीइंग फॉर ऑल। और ये होगा कैसे? तो ये होने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है
एको सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक ही है और उसको श्रेष्ठ लोग, उसको विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और इसी बात को जब हम भारत में देखते हैं तो कहीं एक ओंकार की बात होती है, कहीं निराकार साकार की बात होती है। तो दुनिया भर में जहां जहां पर श्रेष्ठ महापुरुषों ने, चाहे किसी ने यरूशलेम में, चाहे किसी ने अरब में, चाहे किसी ने किसी और स्थान पर, उसने उस एकत्व का साक्षात्कार किया तो आगे बताने का प्रयास किया। वो कोई समझ पाया नहीं समझ पाया, चीजें आगे बढ़ पाई नहीं बढ़ पाई, वो एक अलग बात है। लेकिन सबका जो संदेश, प्रारंभिक संदेश रहा वो ये कि सत्य एक ही है, और उसको अलग अलग नामों से महापुरुषों ने दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से बोला। और ये चीज, इस सत्य का साक्षात्कार करने के बाद जब सत्य एक ही है तो आपस का कोई संघर्ष रहता है और सबको सुखी होना है। तो तीसरा सूत्र जो एक स्लाइड में गुलशन जी ने भी मेंशन किया वो है वसुधैव कुटुंबकम। किस सारी धरती पर रहने वाले सभी मानव, और अगर जो नड्डा जी ने कहा कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी लोग हैं, इस प्रकार की चैतन्य इकाई है, तो ये सब परिवार के रूप में रहेंगे। परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, भारत का कॉन्सेप्ट, कि जिसके अंदर सबके संभाल की चिंता होती है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बूढ़ा है, और जो जिस आयु में है उसको उस आयु के अनुसार उसके भरण पोषण की, उसके ज्ञान विज्ञान की, ये सारी जो व्यवस्था होती है वो परिवार व्यवस्था के अंदर होती है। तो ये परिवार केवल मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, इतना ही नहीं, तो ये मेरा पड़ोस, ये मेरा गांव, ये मेरा शहर, ये मेरी बस्ती, ये मेरा जिला, ये प्रांत, तो ये देश और अंतरराष्ट्र, ये पूरी वसुधा, ये सारी दुनिया, ये मेरा परिवार है। ये नालंदा का ज्ञान का भाव है। जिस ज्ञान और विद्या की बात कुलदीप जी ने अपने सामने रखी, तो वो ज्ञान और विद्या इस सत्य को रियलाइज करने की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और वसुधैव कुटुंबकम। ये तीन बातें जब अपने ध्यान में आती हैं अपनी उस नालंदा की शिक्षा के को, जिसको हम आज विचार कर रहे हैं, आज जब हम नालंदा को रिवाइव करने की बात करते हैं तो नालंदा की बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं कि भाई वैसी बिल्डिंग बनाएंगे जैसी नालंदा की होती थी, वैसे हॉस्टल्स बनाएंगे वैसा होगा। और कई बार ये ठीक है कि जो उस समय की पांडुलिपियां हैं उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम उन्हीं पांडुलिपियों पर आगे की शिक्षा चलाएंगे ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान होगा, किस चीज को हम अपने साथ बनाए रखेंगे, वो हमारा शिक्षक का धर्म क्या है, क्या व्हाट इज धारेति, जो अपना अभी प्रमोद जी ने कहा कि जो हमारी धारणा है वो धर्म है, वो ये धर्म है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम। अब जब ये अपनी श्रेष्ठता ध्यान में आती है, ये अगर मुझे समझ में आता है, ये अगर मैं रियलाइज करता हूँ, ये अगर विद्यार्थी रियलाइज करता है, तो दीक्षांत समारोह पर नालंदा में वो अपने शिक्षक से पूछता है कि अब क्या करना है। अब ये मुझे समझ में आ गया कि सत्य क्या है और सभी सुखी हो ये कामना है, और सारा जो वसुधा है वो मेरा परिवार है, लेकिन अब करना क्या है, ये दीक्षांत समारोह पर पूछता है। तो उसको जो लक्ष्य दिया जाता है वो ये दिया जाता है, कृणवंतो विश्वमार्यम, कि अब सारी दुनिया को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है। अभी 10,000 विद्यार्थी नालंदा में पढ़ रहे हैं, तो सारी दुनिया के लोग यहाँ आकर के नहीं पढ़ पाएंगे, सब लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे, सब लोग विद्यालय में नहीं आ पाएंगे। तुम्हें विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला है, अब तुमने दुनिया भर में जाना है, तुमने सब लोगों के पास जाना है, ये श्रेष्ठता का संदेश तुमने उनको देना है। ये जो ज्ञान के 4 सूत्र हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसके कारण से आपका संघर्ष नहीं है, सभी को सुखी होना है, सभी की सुख की कामना है, व्यक्ति सुख धर्मी है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और उस सुख को कैसे वो प्राप्त कर सकता है ये बताने के लिए परिवार का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का, और सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, यही हमारी श्रेष्ठता का एक परिचायक है। हमारी श्रेष्ठता का परिचायक ये नहीं है कि हमारी तलवार कहाँ तक चलती है,
हमारा राज्य की सीमाएं कहाँ तक हैं, बल्कि हमारा ये ज्ञान कहाँ तक पहुंचता है, ये बात जो है हमें नालंदा के विषय को आगे लेके जा सकेगी। ये सत्य और परिवार वाला प्रेम और करुणा भाव से सबको श्रेष्ठ बनाने का जो विचार है, ये सत्य, प्रेम और करुणा के आधार पर आधारित जो नालंदा की शिक्षा है, वो भगवान बुद्ध ने जिसको आगे बढ़ाया, उसी को ही आज हम टीचर्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ओर पास ऑन करना है। ये जिम्मेवारी नालंदा हमें देती है। ये आज के दिन हमको उसका ज्ञान, उसके बारे में विचार करना है और उसे आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, आज इस प्रकार के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Very kind of you. It's a great reward and a gratitude. और ज्ञान के 4 सूत्र सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। सत्य, प्रेम और करुणा, तीनों शब्द बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। May I now request जो इस पूरे प्रोग्राम की फाउंडेशन के जिन्होंने आधारशिला रखी, आज की शाम के इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया और आज के इस पूरे प्रोग्राम को एक सूत्र में बांधा, डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, may I humbly request you kindly share your views and conclude this entire program from your side while conveying the deep gratitude and thanks to all the dignitaries who joined us this evening. और मुझे एक प्रश्न बार बार अंदर आ रहा है जो प्रोफेसर कुलदीप जी ने, जो कुलदीप जी अपने अग्निहोत्री जी ने शुरू में कहा कि वो दरबार जब उससे बात कर रहा था तो उसने कहा ये बताओ इसका आंसर क्या है, मैं कौन हूँ। बोला भैया अगर मुझे यही पता होता कि मैं कौन हूँ तो मैं यहाँ क्यों आता नालंदा में। That was remarkable, sir. People are sending so many comments on that question to me. It is so true because मुझे ये ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद फिर प्रमोद जी ने जब कहा जीवन का लक्ष्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन को स्लो डाउन करना है प्राणायाम से, मन की स्थिरता कैसे लानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या आना है और भारत की संस्कृति से सब चीजों को दोबारा रिवाइव कैसे करना है। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी को। आदरणीय पैनलिस्ट श्री प्रमोद जी, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, माननीय वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, श्री विजय नड्डा जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती, और डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, भूतपूर्व उपकुलपति PTU, डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि अभी सीक्वेंस में गुलशन जी ने आधा मेरा काम कर ही दिया है। अग्निहोत्री जी ने उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की जो विश्वविद्यालय की शिक्षा, उसका हेतु क्या था और व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक पहलू उसके क्या थे, उसके ऊपर गागर में सागर भरी और 10 मिनट में ही हमें उसका जो आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष था उसके बारे में सारी जानकारी दी। विजय नड्डा जी ने ऐतिहासिक कारणों में जाते हुए कैसे आत्मविस्मृति से देश के जो विदेशी हमलावर थे उन्होंने उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए उनकी मानसिकता क्या थी। माननीय प्रमोद जी ने जो आज हमारे एक सामाजिक व्यक्ति के लिए क्या गुण हमें धारण करने हैं जिससे हम अपने जीवन में इस लक्ष्य की ओर एक समाज के रूप में अग्रसर हो पाए। नालंदा के जो विश्व गुरु भारत को पुनः, जो हमारा संघ में हम अक्सर बात करते हैं विश्व गुरु भारत की, और उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हमें कैसे अपना जीवन हमारा एक होना चाहिए और कैसे हम अपने आप को एक उस सेनानी के तौर पे तैयार कर सकते हैं। और डॉक्टर रजनीश अरोड़ा ने जो 4 गुणों की बात करते हुए कहा है, तो बहुत ही 1 घंटे में मुझे लगता है
ये वेबिनार 1 घंटे से नहीं, कई घंटों से चल रहा है। इतनी थिक नॉलेज और इतने भिन्न पहलू, तो ये हम सबके लिए एक इसको ग्रहण करने का है। मैं इन सब के कंक्लूजन में एक ही निवेदन करूंगा, जैसा अग्निहोत्री जी ने बात करी, नालंदा टाइम्स के जाने का कारण क्या रहा, क्योंकि हम आत्मविस्मृति तो हो गई। एक जो विदेशी हमलावरों की वजह से पहले अरब से लोग आए, तुर्क आए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने एक हमारे सिस्टम के प्रति एक हीन भावना क्रिएट की। 1.5 लाख से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी बिना अध्ययन के हमारे आर्काइव्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में हर चीज़ का, जब बच्चा साइंस पढ़नी शुरू करता है, समाज विज्ञान पढ़ना शुरू करता है, कोई भी विषय पढ़ना शुरू करता है, तो ब्रिटिश पद्धति से उसका जो ओरिजिन है वो रोमन और ग्रीक रूट्स में जाके बता दिया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो हमें मेडिसिन का जो ओरिजिन है वो रोमन एंड ग्रीक रूट्स में जाके बता दिया जाता है, बिना ये बताए कि उससे कई हजार साल पहले भारत की धरती पे इतना ज्ञान, और उस ज्ञान का इन सिंक्रोनाइजेशन विद नेचर, कुदरत के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन के साथ, नॉट फॉर कमर्शियल गेन, नॉट फॉर पर्सनल गेन, बट फॉर दी सोशल कंसोलिडेशन, फॉर सिंक्रोनाइजेशन विद, जो प्रमोद जी ने बात कही, मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए वो जो एक फिलोसफिकल डिफरेंस था। महर्षि वाल्मीकि रचित श्री राम संवाद में भगवान श्री राम कहते हैं, घोष्ठी भावे बलाधानम राष्ट्रस्य मुख्य साधनम, बालोपि शिक्षस्य जानीत राष्ट्रेण सार्धर्मिता। राष्ट्र का मुख्य कर्तव्य, the foremost of the function of the nation is to strengthen the community will. All the children shall be trained to identify themselves with the society and nation. ये मेरे ख्याल एक शिक्षा का, समाज का जो क्या स्वरूप होना चाहिए, और ये चीज हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और आज हमारे यहाँ 4 ऋषि, हमारे मॉडर्न ऋषि जो है, अग्निहोत्री जी, प्रमोद जी, विजय नंदा जी और रजनीश जी, उन चारों से हमने ग्रहण की है। तो मैं यही एक हम सब की तरफ से यकीन इनको दिलाता हूँ कि हम लोग अपने जो हमारा रोल है, अभी सोशल रोल है और प्रोफेशनल रोल है, उसमें ये जो आज हमें ज्ञान के सूत्र प्राप्त हुए हैं, उनको इनकलकेट करने का प्रयास अपने स्तर पे करेंगे। और प्रमोद जी को विशेष तौर पे मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से निवेदन करता हूँ, और एक रेजोल्यूशन हम सब की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कि ये जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो आज थोड़े थोड़े समय में हमें आपके द्वारा ये सूत्र चारों जो हमारे वक्ताओं से मिले हैं, उनको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में इनकलकेट करेंगे, लागू करेंगे, स्थापित करेंगे, और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के रास्ते में। और ये हमारे समाज का जो अभी पैंडा है, बाकी है जो रास्ता, तो उसमें हम एक सेनानी के नाते, एक पथिक के नाते आपके सहयोगी बनेंगे। और सभी जो हमारे पैनल जुड़े हुए ऑडियंस हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि ये वेबिनार बाकी वेबिनारों से भिन्न है। शायद इसमें समाज और व्यक्ति को एक होने का जो संदेश हमारे चारों विद्वान पैनलिस्टों ने दिया है, वो हमें अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे आत्मसात करना है, इनकलकेट करना है। और कोई रीजन नहीं है, जैसा प्रमोद जी ने कहा, कि हम लोग अपने जीवन में भारत को पुनः विश्व गुरु बनते हुए देखेंगे, और भारत के शहर शहर में, गांव गांव में नालंदा का ज्ञान दोबारा से बहेगा, और वही दर्शन जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का आधार बनेगा। इसी शुभेच्छा के साथ मैं सभी पैनलिस्टों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अपने समय से समय निकाल कर अपने
व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के हमें समय दिया है, और सभी ऑडियंस का जो आज इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं, और विशेष तौर पे डॉक्टर कुलश्री शर्मा जी का, जिन्होंने इस सीरीज को शुरू किया है और हम सबको आज इस वेबिनार में एकत्र होने का मौका प्रदान किया है। तो मैं इसी आशा के साथ कि हम सब लोग भी इस पथ के पथिक बनेंगे और अपने जीवन में भारत को विश्व गुरु, पुण्य विश्व गुरु के तख्त पर आरूढ़ देखेंगे, और इसका जो सारा हमारा डिटेल जो है चर्चा हुई है, उसको प्रतिमूर्ति, उसका प्रतिमान हम समाज में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी। मैं आपके प्रयास का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपके ही माध्यम से मैं इन महानुभाव को आज शाम को इस प्रोग्राम में लेके आया, और हम मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट की जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, और वर्ल्ड ओवर से हम बेस्ट रिसर्च, बेस्ट इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कुछ भी हमारे सिस्टम के अंदर जुड़ सकती है, क्योंकि पुनः अगर हमने विश्व गुरु बनना है तो उन सब चीजों के लिए भारत का भी सम्मान करना होगा, भारत की शिक्षा का सम्मान करना होगा, भारत के शिक्षकों का सम्मान करना होगा, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान करना होगा, और इन सब व्यवस्थाओं में शिक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए रिवाइवल ऑफ नालंदा व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, और यही हमारा प्रयास है। 3 शब्दों पर सब कुछ टिका है, मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट। जो शिक्षा है उसका डे टू डे लाइफ के अंदर रेलेवेंस क्या है, उसका सदुपयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में माता पिता को, बच्चों को, सबको ये बात समझ आई होगी, जब सब चीजों की व्यवस्थाएं हम सबको करनी पड़ रही हैं तो हमें समझ आ रही है। मैं अपना आभार प्रकट करते हुए आज की शाम श्री प्रमोद कुमार जी, श्री विजय कुमार नड्डा जी, डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी और डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। माई डीप ग्रेटिट्यूड्स, माई deep great regards to all of you. Thank you very much for joining. Thank you very much for coming. From the entire global community, we convey our deep gratitudes and thanks to all of you for having made this evening. Thank you very much. Shubh Ratri. Jai Hind. नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, मेरी ओर से भी नमस्कार। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़े अच्छे विषय ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। थैंक यू सर, थैंक यू सर।